So we will continue with types of progressive waves. Before we go ahead with types of progressive wave, tell me what is a progressive wave? What is a progressive wave? A wave which travels continuously in a given medium in a given direction is known as progressive wave. तो अगर एक वेव कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन, इट इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव वेव. इसमें दो टाइप्स थे, एक था ट्रांसवर्स और एक था लॉन्गिट्यूडनल. और प्रोग्रेसिव वेव वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, उसके दो कॉमन प्रॉपर्टी होते हैं. विच टू कॉमन प्रॉपर्टीज? ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम perform vibrations with same amplitude, same frequency and same period. Number two, state of oscillation change from particle to particle. तो लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन इन डिटेल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव. तो आज हम फटाफट से उसको रिवाइज करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज रिवाइज करेंगे एंड देन विल गो अहेड विद लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव कैसे डिफाइन किया था आपने? व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? What is transverse wave? The wave in which particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation is known as transverse progressive wave. और इसके प्रॉपर्टीज देखे थे हमने. तो पहला प्रॉपर्टी ये था, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मैं अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पार्टिकल्स वाइब्रेट in a direction perpendicular to direction of propagation. Property number 2. What was second property? When a transverse wave propagates through a medium, the medium gets divided into alternate crest and trough. The medium gets divided into alternate crest and trough. Alternate crest and trough. Then the distance between two successive particles which are in same phase, और ये distance आपने measure किया था along the direction of propagation. So the distance measured along the wave between two successive particles which are in same phase, two successive particles which are in same phase is known as wavelength. ये प्रॉपर्टीज आपको सब याद रहने चाहिए. यू हैव टू ऑफ कोर्स रिमेंबर ऑल दिस. देन crest and trough advance through a medium and they are responsible for transfer of energy from one point to another. So crest and trough advance through a medium and they transfer energy from one point to another, and they transfer energy from one point to another. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, transverse wave can pass through solids and on the surface of liquids. So they can pass through solids and surface of liquids, but do not pass through or you can say from within liquids and gases. Next,
तो एट द पॉइंट जहाँ पे क्रेस्ट बना या जहाँ पे ट्रफ बना वहां पे प्रेशर और डेंसिटी के वेरिएशंस नहीं है, so there are no variations in pressure and density. There are no variations. There are no variations in pressure and density at crest and trough. उसके बाद polarization. So transverse wave can be polarized. They can be polarized. और मैंने आपको बताया था what is the meaning of polarization. Remember what is polarization? क्या था polarization? Restricting the vibrations of wave in a single plane is known as polarization. तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, नॉट एन इशू. और एक 8 नंबर प्रॉपर्टी है वो दोनों वेव के लिए ही कॉमन है, दैट द मीडियम शुड बी इलास्टिक. तो जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होगा, कौन सा वेव? प्रोग्रेसिव वेव. चाहे वो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव हो या फिर लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव हो, दोनों ही केसेस में मीडियम शुड पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. अब ये पोलराइजेशन का मतलब क्या था? तो पोलराइजेशन का मतलब वापस से अच्छे से समझ लो, क्योंकि 12th में अगेन यू विल नीड. तो पोलराइजेशन समझने के लिए हम लोग बेस्ट एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. तो पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन क्या होता है वो बताता हूँ, फिर उसको मैकेनिकल वेव पे लेके जाएंगे. तो अगर आपको याद है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने 3 डायरेक्शंस कंसिडर किए थे. एक था डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक था डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक था डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ओके. तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इस सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही कंपोनेंट्स है. तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट. तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन एक्स वाई प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन एक्स जेड प्लेन. तो ऐसा है. मैक्सिमम वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम डिनोट करते हैं B0 से, और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं E0 से. तो अब आगे देखोगे आपको ये B0 E0 12th स्टैंडर्ड में बार बार दिखेगा इन द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स. तो जब हम लोग पोलराइजेशन की बात करेंगे तो हम लोग या तो मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉर्मली ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर्ड. और ये पोलराइजेशन आप 12th में प्लस फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में वापस सीखना ही पड़ेगा आपको. तो हमारे पास एक सिंगल वेव था, उस सिंगल वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर प्लेन है. लेकिन जब हम लोग इन जनरल बोलते हैं लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम सम सोर्स, एनी सोर्स, इट कैन बी दिस ट्यूबलाइट, it can be light coming from sun, it can be light coming from any source. तो वहां से सिंगल वेव तो आ नहीं रहा है, वहां से आते हैं बिलियंस ऑफ वेव्स टुगेदर, बहुत सारे वेव्स एक साथ आते हैं. तो किसी वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस पर्टिकुलर प्लेन में होगा, किसी का किसी और प्लेन में होगा. यू मे हैव वाइब्रेशन इन दिस प्लेन आल्सो, यू मे हैव वाइब्रेशन इन अनदर प्लेन आल्सो. So when the vibrations of electric field or magnetic field are in all possible planes, such a wave is known as, such a light is called as unpolarized light. क्या बोलते हैं उसको? Unpolarized light. UPL. Unpolarized light. Symbolically एक स्टार से डिनोट करते हैं इसको. Somehow by some method, अब some method मतलब उसमें बहुत सारे मेथड है, 4 मेथड है. अगर मैंने एक स्पेशल मटेरियल यूज किया, वैसे इस स्पेशल मटेरियल का नाम है क्वार्ट्ज क्रिस्टल. क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये वही क्वार्ट्ज मटेरियल है जो घड़ी में यूज होता है, इसलिए घड़ी को क्वार्ट्ज बोलते हो आप. तो अगर हमने अनपोलराइज लाइट को क्वार्ट्ज क्रिस्टल से पास किया, तो व्हाट हैपेंस इज, सिर्फ एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पास होता है, बाकी सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं. एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन इन वन पर्टिकुलर प्लेन, it is allowed to pass through and other vibrations are basically absorbed. इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. क्या बोलते हैं उसको? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. तो लाइट जब क्रिस्टल से पास होके आया तो वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में है,
So when you have vibrations only in one plane, such a light is called as plane polarized light. PPL, plane polarized light. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है नॉन मैकेनिकल वेव। क्यों नॉन मैकेनिकल? क्योंकि उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन पास थ्रू विथ और विदाउट एनी मीडियम। अगर आपको सेम एग्जांपल कंसीडर करना है मैकेनिकल वेव्स का, क्योंकि हम फिलहाल तो मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं। इफ आई टेक अ स्ट्रिंग और दीवार पे बांध दिया, एक एंड हमारे हाथ में है और हम लोग उसको वाइब्रेट करवा रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इसका मतलब वो कौन सा टाइप का वेव हो गया? अनपोलराइज्ड। और बीच में अगर एक छोटा सा विंडो रख दिया मैंने, छोटा सा विंडो मतलब स्मॉल ओपनिंग, तो क्या होगा? जो वाइब्रेशंस इस विंडो को पैरेलल है वही पास होंगे, बाकी के ब्लॉक हो जाएंगे। तो जो वेव विंडो के बाद मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्लेन पोलराइज्ड वेव। तो ट्रांसवर्स वेव को आप पोलराइज कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे कैन बी पोलराइज्ड। और जिसका पोलराइजेशन पॉसिबल होता है उसका इंटेंसिटी कम करना पॉसिबल होता है। इसके लिए जब आप when you go out in the afternoon sunglasses पहन लिए तो you receive less intensity of light, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव। तो इतना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव विच इज लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। तो वो पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव? Parallel to the direction of propagation. What is parallel to the direction of propagation? क्या? हाँ, मतलब vibrations of the medium, vibrations of the particle of the medium, they are parallel to the direction of propagation. ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, दोनों ही वेव में जब एक वेव एक मीडियम से पास होगा, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। In case of transverse wave, if the wave is propagating along x-axis, particles are vibrating either along y or along z. पर longitudinal wave में vibrations and direction of propagation is same. For example, suppose हमारे पास we have air, और ये एयर के पार्टिकल्स है, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स है विच आर एट रेस्ट। तो हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स है विच आर एट रेस्ट। तो पहले तो पूरा अच्छे से समझ लो इसको। You have molecules of air which basically are at rest. Effectively, they are at rest. Okay. Give me a minute. Fine. Sufficient enough. Okay. तो ये है एयर के पार्टिकल्स, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स। मैं एयर के पार्टिकल्स बोल रहा हूँ बट द रीजन इज वेरी सिंपल। एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस। विच टाइप ऑफ गैसेस? ये 12th के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में लगेगा आप। विच टाइप ऑफ गैस? यू आर साइंस स्टूडेंट, और साइंस स्टूडेंट जिंदा है उसको पता होना चाहिए, बिकॉज यू ब्रीथ, so you should know what is air made up of. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन कम परसेंटेज में है, और वो बढ़ गया क्योंकि हमने बढ़ाया बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। लेकिन अदरवाइज नेचुरली स्पीकिंग इट इज मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में कौन सा टाइप का गैस होता है? विच टाइप ऑफ गैस? हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक? सुना है क्या? तो एयर दैट यू ब्रीथ, ये मोनोएटॉमिक है कि डायटॉमिक है? डायटॉमिक है। तो ये पता होना चाहिए। अगेन, गैस के टाइप पे हम आगे जाके एक वैल्यू डिफाइन करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्यामा वैल्यू। वो अभी भी आएगा, थोड़ी देर में आ ही जाएगा ग्यामा। तो रिमेंबर ग्यामा अभी आएगा, थोड़ी देर में आपको लगने वाला है ये। मोनोएटॉमिक गैस हो, वेल कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस? विच गैस इज मोनोएटॉमिक? मोनो मतलब सिंगल,
हीलियम, अर्गन। व्हाई? बिकॉज दे आर नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, क्योंकि उनका ऑक्टेट मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कंप्लीट। गुड। तो अगर मोनोटॉमिक गैस हो उसका गामा वैल्यू होता है 5/3। ये आप सीखोगे आगे जाके, और अभी लगने वाला है तो पता होना चाहिए। तो हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं गामा वैल्यू, और ये गामा वैल्यू होता है रेशियो ऑफ Cp/Cv। Cp होता है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो भी बताऊंगा मैं आपको। और अगर डायटोमिक गैस है, डायटोमिक जैसे कि O2, N2, H2, ये होता है 7/5, मतलब 1.2। गुड। तो हम मैं यहाँ पे फिलहाल बात कर रहा हूँ एयर की, इस वैल्यूज पे मैं बाद में वापस आऊंगा, पहले फिलहाल इसको समझ लो। तो हमारे पास एयर है, गैस है, विच इज एट रेस्ट। नाउ अब अगर मैंने इसमें से एक वेव पास किया विच इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब साउंड है जैसे, तो इन दैट केस जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो अगर वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट हो रहा है तो वाइब्रेशंस भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही होंगे। मतलब होगा क्या, यहाँ के जो पार्टिकल्स है दे विल वाइब्रेट, they will start vibrating something like this. So they start vibrating in the direction parallel to the propagation. पहले कैसा था? परपेंडिकुलर। वो कौन सा वेव था? ट्रांसवर्स। ये कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल। तो द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ऐसा होगा कई बार डेंसिटी बढ़ गया, मतलब मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कई जगह पे ऐसा होगा कि डेंसिटी कम है, मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज मोर कंपैरेटिवली। तो जहां पे डिस्टेंस कम है उसको बोलते हो कंप्रेशन, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है उसको बोलते हो रेयरफैक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफाइन ही कर लेते हैं। तो द वेव इन विच particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation, is known as longitudinal wave. Example of longitudinal wave is कौन? साउंड। मतलब तुम्हारा चैप्टर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन रियलिटी चैप्टर का नाम साउंड था, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे हमने वहां पे प्रॉपर्टीज देखे, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, सेम टाइप के प्रॉपर्टीज है। तो मैंने कल ही बता दिया था, पहला प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेशन, तो यही पहला प्रॉपर्टी बन गया। द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो पहला प्रॉपर्टी यही आएगा। व्हाट वाज सेकंड प्रॉपर्टी दैट यू हैव मेंशन्ड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? क्या लिखा था तुमने? द मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट रेस्ट एंड ट्रफ। तो सिमिलरली व्हेन longitudinal wave propagates through a medium, the medium gets divided into alternate compression and rarefaction. अब ये compressions are the regions of high pressure and rarefaction are the regions of low pressure. इसके बाद आपने क्या बोला था? सेम distance between two successive particles which are in same phase is known as wavelength. वहां पे distance between two successive particles मतलब two crest और two troughs. यहाँ पे distance between successive compressions and rarefaction. तो दो successive compression
या दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलोगे, वेवलेंथ। तो थर्ड डेफिनेशन तो सेम ही है, वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन two particles which are in same phase, of course successive particles, so successive particles which are in same phase is known as wavelength। और ये डिस्टेंस हमने मेजर किया along the wave is known as wavelength। why this definition is important, तो तुमको पहले ये पता होना चाहिए ट्रांसवर्स वेव में when you say that the two successive particle which are in same phase, तो वहां पे दो पार्टिकल्स सक्सेसिव पार्टिकल जो सेम फेज में वो कौन होते हैं, या तो क्रेस्ट या फिर ट्रफ। यहाँ पे कौन होता है, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस। गुड, देन उसके बाद वो जो क्रेस्ट एंड ट्रफ था, अब वेव प्रोपगेट कैसे होता है, वेव प्रोपगेट कैसे होता है, कौन कौन जाता है आगे, क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ एडवांस थ्रू मीडियम एंड ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पे क्या हुआ, compressions and rare fractions, so compressions and rare fractions progress through a medium, advance through a medium, compressions and rare fractions advance through a medium and transfer energy from one point to another, and transfer energy from one point to another, from one point to another। उसके बाद इसके बाद आपने ऐसा बोला था, जब ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट होता है तो मीडियम में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर और डेंसिटी में वेरिएशन नहीं होते हैं, देयर आर नो वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी at any point of the medium when transverse wave propagates to the medium। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, there are variations in pressure and density। at the point of compression pressure and density are more, and at the point of rarefaction pressure and density is less। और ये इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए। हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला जब लगेगा तब ये पता होना चाहिए। तो इन दिस केस यू शुड नो pressure and density is high at points of compression, and it is low at points of rarefaction या regions of rarefaction। Then transverse wave can pass through solids and on the surface of liquids, but they cannot pass through gases and liquids। लिक्विड के सरफेस पे तो पास होता है, लिक्विड के अंदर से पास नहीं होता है, गैस में से पास ही नहीं होता है वो। बट longitudinal waves can pass through any medium, they can pass through solids, liquids and gases। so longitudinal waves जिनका ध्यान नहीं है यहाँ पे ध्यान चाहिए, बार बार मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो longitudinal waves can pass through all the three mediums, that is solids, liquids and gases, solids, liquids and gases, and but cannot pass through vacuum। Fortunately for us, it cannot pass through vacuum। Why fortunately? नहीं तो सन मतलब स्टार, हमारा नियरेस्ट स्टार सन, उसके अंदर मटेरियल का बहुत वाइब्रेशन होता रहता है। यू मे नॉट नो, अंदर बहुत हाई टेम्परेचर है, इट इज प्लाज्मा स्टेट। तो वहां पे बाहर का मटेरियल अंदर, अंदर का मटेरियल बाहर, बहुत चलता रहता है ऐसा। वाई? क्योंकि सन के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर है
और बाहर आते आते लो टेम्परेचर, जब मैं बोलता हूँ लो तो लो मतलब 5-6 हजार डिग्री सेल्सियस वहां का लो, और अंदर लाखों डिग्री में है। एंड एज यू नो, जब मटेरियल गर्म होता है ना तो वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब बाहर की तरफ जाता है, राइट। और बाहर आने के बाद उसका टेम्परेचर कम होता है, फिर वो कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाता है, तो चलता रहता है ऐसा। तो ये वाइब्रेशंस है। और अगर वैक्यूम से ट्रैवल करता वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो हमको हमेशा वही सुनाई देता। फॉर्चुनेटली द वाइब्रेशंस इनसाइड आवर सन, वो यहाँ तक आ नहीं पाएंगे बिकॉज देयर इज नो मीडियम, तो वैक्यूम से पास नहीं होता लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्चुनेटली। इसके बाद व्हाट वाज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, भूल गए, पोलराइजेशन। longitudinal waves cannot be polarized. Longitudinal waves cannot be polarized. अब ऐसा क्यों, बताओ क्यों, why they cannot be polarized? Why? ट्रांसवर्स वेव में क्या था बेबी, थोड़ा सा रियल लाइफ में इमेजिन करो उसको। एक छोटा सा रास्ता है, छोटा सा डोर है, राइट। पहले कोई आ रहा था, ऊपर नीचे जंप मार मार के जा रहा था, जा पाएगा। साइड वाइज जंप मारेगा तो कैन नॉट पास थ्रू, नहीं जा पाएगा ना। इफ यू हैव अ स्मॉल विंडो एंड there is a string which is vibrating up and down can pass, but sidewise cannot pass, क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव था। प्रोपोगेशन का डायरेक्शन और वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट इमेजिन लॉन्गिट्यूडनल वेव है, छोटा सा एंट्री पॉइंट है, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या कर रहे हैं वो, वाइब्रेशन। तो क्या होगा, अल्टीमेटली दे विल बी एबल टू पास थ्रू। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली वाइब्रेशंस दे आर बेसिकली पैरेलल। देखो डिफरेंस क्या है ये भी समझ लो आप। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यहाँ थे पार्टिकल्स। इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, जो वाइब्रेशंस है दे आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो वो तो पास होने ही वाले हैं। अगर परपेंडिकुलर होते तो मे नॉट बी एबल टू पास। तो यहाँ पे पोलराइजेशन होगा ही नहीं, और पोलराइजेशन नहीं होने का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। तो ट्रांसवर्स वेव की इंटेंसिटी कम कर सकते हो क्या तुम, यस। लॉन्गिट्यूडनल कर सकते हो, नो। गुड। इस पे पूरा एक टॉपिक है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। लास्ट प्रॉपर्टी सेम, इसलिए मैंने लॉन्गिट्यूडनल वे में लिखा ही नहीं है, ट्रांसवर्स वे में लिख के दिया है। जिस मीडियम में से वेव पास होगा इट शुड बी इलास्टिक इन नेचर, तो वो सेम प्रॉपर्टी है। गुड। तो होपफुली इट इज नाउ वेरी क्लियर what is the difference between longitudinal wave and transverse wave. Can you give me one example of each? Transverse wave, electromagnetic wave, वो नॉन मैकेनिकल में, मैकेनिकल में waves on a string, seismic waves, उसके बाद water waves, these are all transverse wave. What about longitudinal wave? Sound wave. Okay, good. अब हमको पता होना चाहिए हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेव मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव। अब 11th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ फॉर्मूला क्या है इतना पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो 12th में डिराइव करेंगे, तो फिलहाल हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि फॉर्मूला है क्या, बाकी सब 12th में। तो बाय द वे, आप जब वेव की बात करते हो तो डू यू रिमेम्बर हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, डबल पीरियोडिसिटी। डू यू रिमेम्बर एक प्रॉपर्टी था, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, वेव इज डबली पीरियोडिक इन नेचर, याद है। तो व्हाट इज डबल पीरियोडिसिटी? थ्योरी बहुत बोर होता है मेरे को पता है, लेकिन काम का है, क्या करेंगे अब। तो पूरा चैप्टर में एक आर में खत्म कर सकता हूँ, बट देन यू डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज डबल पीरियोडिसिटी।
What is periodic? What is the meaning of periodic? When something repeats itself after equal interval of time या फिर after equal intervals of distance is known as periodic. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी बताया था कि स्कूल में थे तो आप लेक्चर को पीरियड बोलते थे क्योंकि हर दिन सेम टाइम पे वही सब्जेक्ट होने वाला है, राइट? तो पीरियड वहां से ये वर्ड आता है. एवरी डे 8 AM in the morning maybe you have maths, you will have maths every day. So when something repeats itself again and again after equal interval of time या फिर after equal distances, it is said to be periodic in nature. तो वेव को हम लोग डबली पीरियोडिक क्यों बोलते हैं, उसका रीजन था, सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है और अगर आपको ये डबल पीरियोडिसिटी समझा है तो ही आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आएगा. सपोज हमारे पास एक वेव है एंड इफ यू सी यू ऑलरेडी नो जब भी वेव एक मीडियम से पास होता है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या करते हैं, वाइब्रेशंस. तो अगर आप चेक करोगे तो हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको पार्टिकल सेम जगह पे मिलेगा, सेम जगह पे मिलेगा, सेम जगह पे मिलेगा, ऑलवेज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इट इज जस्ट लाइक यू आर आल्सो सपोज टू बी हियर आफ्टर 23 आवर्स एवरी डे. हर दिन 2:15 बजे आना होता है आपको, आइडियली स्पीकिंग. आते नहीं वो अलग बात है, बट ठीक है. तो ये जो पार्टिकल वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है ये क्या है, पीरियोडिक इन टाइम है, बिकॉज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो पार्टिकल वापस तुमको वहीं मिलेगा. सिमिलरली अगर आप देखोगे आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस आल्सो, हर बार सेम डिस्टेंस के बाद आपको वेव का स्ट्रक्चर सेम मिलेगा. क्रेस्ट, फिर वन वेवलेंथ के बाद वापस से क्रेस्ट, फिर वापस वन वेवलेंथ के बाद क्रेस्ट, ट्रफ, तो वन वेवलेंथ के बाद वापस से क्या आएगा, ट्रफ. So wave is doubly periodic because it is periodic in time as well as periodic in space. Distance मतलब space. Clear? तो अगर आपको mathematical expression बनाना है wave का, if you want to make mathematical expression of a wave, so you should know, always know one more thing. हम लोग फिलहाल तो ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं. अगर ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन तो वाइब्रेशंस कौन से डायरेक्शन में होंगे, y. और ये जो y है इट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ पोजीशन एंड टाइम. y पोजीशन एज वेल एज टाइम बिकॉज द वेव इज डबली पीरियोडिक. इट इज पीरियोडिक इन पोजीशन. हर बार x पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद यू विल फाइंड द सेम शेप. और y टाइम क्योंकि मैंने बताया it is also periodic in time. हर बार सेम टाइम इंटरवल के बाद the particle will be at the same position. तो जब तुम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाओगे तो यहाँ पे wave is function of both position and time. For example, y equal to 2x या फिर y equal to sin x या फिर y equal to e raised to nx या फिर y equal to x tan x. y is a function of x. इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हो, y equal to f of x या फिर y of x. हुआ है क्या मैथ में, फंक्शन हुआ है, हुआ है, यस और नो, नो. तो ठीक है, पहले भी मैंने बताया था आपको कैलकुलस में, मैं वापस बता रहा हूँ. डेरिवेटिव्स के टाइम पे y को बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, x को बोलते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे y डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, x पे, और x क्या है, इंडिपेंडेंट है. तो जब y x पे डिपेंड करे तो या तो y इक्वल टू f ऑफ x या फिर y ऑफ x, राइट. यहाँ पे y किस किस पे डिपेंड करेगा, x और t पे, पोजीशन एंड टाइम पे. तो कैसे लिखोगे उसको, y इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा t या फिर y ऑफ x कॉमा t. तो y ऑफ x कॉमा t इक्वल टू, देन इसके बाद आपको और ज्यादा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू नो टेबल ऑफ साइन एंड कोसाइन एग्जैक्टली? पता है, वेरी गुड. व्हाट इज साइन ऑफ 0 डिग्री, व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6 रेडियंस कितना, 1/2. व्हाट इज 45, व्हाट इज 60,
What about 90? What about 120? You said yes. Sin of 90 plus 30 cos 30. Cos 30 कितना होता है? देखो देखो देखो, लिसन, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, कम होते गया कम होते गया कम होते गया, ऐसा दिमाग में फिट कर लेना आप। ओके, 1/2 के बाद कौन है? 1/√2, ऐसा ही है ना? नहीं, पक्का? हाँ, तो थोड़ा सा कम होते गया बोला मैंने, कम होते गया मतलब उल्टा चलाओ अब इसको। जस्ट मेक इट अदर वे राउंड। ये √3/2, या तो साइन ऑफ 120 इज साइन ऑफ 90 प्लस 30, दैट इज कॉस ऑफ 30। व्हाट इज कॉस ऑफ 30? √3/2। उसके बाद 135 मतलब कॉस साइन ऑफ 90 प्लस 45, कॉस ऑफ 45 मतलब कितना? 1/√2। करेक्ट। उसके बाद 150, पक्का? साइन ऑफ 90 प्लस 60, cos 60, what is cos 60? 1/2, then 180 and good। अब इसको तुम इसमें अगर प्लॉट करते हो, इफ यू प्लॉट दिस हियर, करो प्लॉट और बताओ क्या आएगा। कितने एंगल तुमने प्लॉट किया? अभी तो मैं 180 के बाद और आगे जाने वाला हूँ। वी विल सी आल्सो अप टू 360, विल सी अप टू 360 जीरो एंगल। तो मैं यहाँ पे एंगल प्लॉट करूंगा, यहाँ पे मैं y प्लॉट करूंगा, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या था? y इक्वल टू साइन एक्स, पक्का? जीरो, उसके बाद 30, उसके बाद लेट अस से 45, 60, देन 90, देन 120। इसमें इंपॉर्टेंट होता है 0, 90, 180, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, देखेंगे बाद में देखेंगे। 120, उसके बाद 135 एंड देन 150, 150 and 180, 150 and finally 180। प्लॉट करो, प्लॉट करो, तो प्लॉट करो, बताओ। साइन 0 इज 0, तो पार्टिकल कहाँ पे है? यहाँ पे। साइन ऑफ 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 इज 1। उसके बाद क्या होगा? कम होगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, ऐसा कम होते होते, कम होते होते एक शिफ्टेड दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, नॉट एन इशू। थोड़ा सा शिफ्ट दिख रहा है, कोई बात नहीं। करो तो कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट कर दो। क्या क्या दिखता है? ये क्या दिखता है? वेव का एक पार्ट दिख रहा है क्या? तुमको याद है वेव क्या था? वेव ऐसा था क्या? तो ये 0 है, ये 180 है, और 90 पे क्या है? मैक्सिमम है, दिख रहा है मैक्सिमम। और अगर तुम 180 से 360 प्लॉट करोगे तो आगे ये कंटिन्यू होगा नीचे की तरफ, करेक्ट? राइट। तो जब तुम साइन प्लॉट करोगे, साइन का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो व्हेन यू प्लॉट ग्राफ ऑफ साइन, व्हाट डू यू सी इज वेरी सिंपल। तो जब आप प्लॉट करने वाले हो तो आपको ऐसा मिलने वाला है, ये साइन है, साइन। और हमारा वेव कैसा था? ऐसा ही था, यस, बराबर। साइन का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम -1 मतलब नेगेटिव मैक्सिमम, सॉरी, पॉजिटिव मैक्सिमम +1, करेक्ट? पक्का पक्का, श्योर श्योर। ओके, हमारे पास वेव था, ट्रांसवर्स वेव, जो एक मीडियम से प्रोपोगेट हो रहा है। उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, उसको तुमने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को? एम्पलीट्यूड। क्या बोला था इसको तुमने? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल ए। तो ये क्या हो जाएगा? +A। और जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या आएगी फिर? -A। वेरी गुड। तो ये क्या बन जाएगा? -A। तो ट्रांसवर्स वेव और साइन वेव दोनों अलग अलग चीजें है क्या? है अलग अलग? नहीं, शेप क्या है? सेम है।
तो यहाँ पे साइन तो आने ही वाला है, ये पक्का हो गया। गुड। लेकिन साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? 1। इसका कितना है? ए। तो साथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे? ए। करेक्ट। और ये जो वेव है ये किसका किसका फंक्शन है? एक्स और टी का। वेरी गुड, एक्स और टी का। मतलब इसके अंदर आपको एक टर्म में एक्स दिखना चाहिए और एक में टी दिखना चाहिए। है ऐसा? ऐसा कुछ लिखा होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। राइट। ये डिराइव 12th में होगा, अभी सिर्फ पता होना चाहिए। तो हमने ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब लिखा तो इट वाज डबली पीरियोडिक इन नेचर, इसलिए यहाँ पे एक्स और टी दोनों ही आ गए। एक्स और टी दोनों ही आ गए। क्लियर। और ये प्लस क्या है? ये सम कांस्टेंट है। अब ये सम कांस्टेंट क्यों है उसकी बात बाद में करूंगा मैं, नहीं तो एकदम सब मिक्स हो जाएगा। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, तो एक्स एंड टी दोनों। तो ये आ गया प्रोग्रेसिव। इस प्रोग्रेसिव और एक नाम भी है, तो बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक? हारमोनियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हारमोनियम भी तुम जब, इफ सम वन ऑफ यू स्टडीज म्यूजिक आल्सो, तो जो भी तुम नोट्स जनरेट करते हो साउंड वेव्स ही होते हैं। और साउंड वेव्स भी साइन कोसाइन ही है। तो वहां पे हारमोनियम नाम भी वहीं से आया है, मैथमेटिक्स से आया है। तो जिस फंक्शन में साइन या कोसाइन हो, साइन और कोसाइन हो, उसको बोलते हो हार्मोनिक। क्योंकि साइन एंड कोसाइन का कॉमन नाम है हार्मोनिक फंक्शंस। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉमन नाम भी है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियॉन्स। वैसे साइन या कोसाइन इसका कॉमन नाम है हार्मोनिक। तो साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन कहीं पे भी दिखे, दोस फंक्शन आर कॉल्ड एज हार्मोनिक। इसके लिए इस वेव को क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक वेव। प्रोग्रेसिव क्यों बोला? बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली in a given medium and in a given direction. So harmonic because mathematical representation of wave contains either sine or cosine. Progressive because it is continuously traveling in a given medium. That is why it is called as simple harmonic progressive wave. Now that clear? तो मैथमेटिकली एक वेव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सम कांस्टेंट फाई। ये सम कांस्टेंट हम लोग बाद में बात करेंगे 12th में, अभी नहीं, अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा अननेसेसरी। मैंने अभी बोला था कि ये जो वेव है ये डबल पीरियोडिक है। डबल पीरियोडिक है मतलब स्पेस में और टाइम में पीरियोडिक है। तो वो भी चेक कर लो कि ये जो हमने इक्वेशन लिखा है सच में ऐसा हो रहा है क्या। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सपोज मेरे पास एक वेव था, एक वेव था, मैंने एक पर्टिकुलर पोजीशन लिया, इस वेव पे कोई भी एक पोजीशन ले लिया, मे बी दिस पोजीशन। तो हमने वेव पे एक पर्टिकुलर पोजीशन ले लिया, मतलब एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू ले ली। तो जब तुम बोलते हो कि एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू एक्स इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब पता है क्या होता है? एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है? एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब तुम वेव में एक पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर जगह मतलब एक्स हो गया फिक्स, एक्स क्या हो गया? फिक्स। तो एक्स कांस्टेंट हो गया,
ये तो पहले ही कांस्टेंट था, तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट। सही है। तो इस केस में के एक्स प्लस अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट, या फिर मतलब फाइव फाइव माइनस के एक्स क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हो, तो व्हाट यू विल गेट इज सिंपल ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा, फाइ, बीटा, गामा, डेल्टा, जो भी सिंबल यूज करोगे वो फाइव माइनस के एक्स क्या है, कांस्टेंट। करेक्ट। इसका मतलब क्या है, मुझे मैथमेटिकली, मतलब मुझे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का इंटरप्रिटेशन बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। वाई इज फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, वेरी गुड। एक्स कांस्टेंट हो गया तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी पार्टिकल होगा वो हर बार इक्वल टाइम के बाद उसी पोजीशन पे वापस आएगा, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स पीरियोडिसिटी इन टाइम। तो at any given position, the particle of the medium at that position is performing periodic motion. So the particle will go back to its position again at the same instant of time after equal interval of time. अब उल्टा सोचो, डबल पीरियोडिक था ना, तो यहाँ पे तुमने एक्स क्या किया, कांस्टेंट। एक्स कांस्टेंट मतलब तुम एक ही पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर पार्टिकल हर बार इक्वल टाइम के बाद कहाँ आएगा, सेम पोजीशन पे आएगा, मतलब पीरियोडिक इन टाइम। अब ऐसा सोचो, अगर मैं टाइम कांस्टेंट ले लेता हूं, टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है, मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेव को देख रहा हूं। मैंने आपको कल भी बताया था, शायद परसों भी बताया था, आप जब एक स्ट्रिंग लेते हो, उसको वाइब्रेट करते हो और छोड़ देते हो, तो क्या होता है, वो जो तुमने यहाँ पे क्रैश जनरेट किया था वो आगे गया, वो वहीं नहीं रुका, वो आगे गया। राइट। करेक्ट। तो ये जो पार्टिकल अभी क्रेस्ट पे है वो बाद में क्रेस्ट पे नहीं होगा, मीन पे आएगा, फिर कहाँ जाएगा, ट्रफ पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, मीन पे, फिर कहाँ जाएगा, क्रेस्ट पे। और सपोज यू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ दैट वेव। व्हाई फोटोग्राफ, कल रक्षाबंधन का फोटो निकाले, हाँ वेरी गुड। तो वो तुमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाले, दैट इज द आइडिया। तो व्हेन आई से टेकिंग फोटोग्राफ, मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बात कर रहे हो। सही है। तो टाइम को क्या कर दिया तुमने, फ्रीज कर दिया। तो तुमने जब टाइम को फ्रीज किया तो तुमको वेव कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, स्टेबल, नॉन मूविंग। तो उस केस में अगर तुम देखोगे, हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर। तो अगर तुम टाइम को कांस्टेंट कर रहे हो, तो y किसका फंक्शन बन जाएगा, डिस्टेंस का। और टाइम और वो फाइ, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट माइनस के एक्स, वेयर वेयर क्या क्या कांस्टेंट था, ओमेगा टी प्लस फाइव इज कांस्टेंट। अब ये मैंने क्यों सब बताया है, कमिंग बैक, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आपको डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, तुम सिर्फ नॉर्मल लॉजिक से इक्वेशन लिख रहे हो। आप बोल रहे हो कि ये साइन ऐसा दिख रहा है तो साइन आ गया, आप बोल रहे हो डबल पीरियोडिक था तो टाइम और एक्स आ गया, आपने बोला साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे ए है तो ए आ गया। तुमने लिख तो लिया, वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो तुमने लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं। तो वेरीफाई कैसे किया, डबल पीरियोडिसिटी चेक करना पड़ेगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन ले रहा हूँ, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे इट शुड बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, आ रहा है क्या, यस। और अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ले रहा हूं, मतलब मैंने वेव को फ्रीज कर दिया है, तो मुझे हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद क्या दिखना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, यस। तो डबल पीरियोडिक है क्या, यस। इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। राइट। यही सब थ्योरी में लिख के दिया है मैंने आपको, वर्ड बाय वर्ड। गुड। अब एक छोटी सी बात और रह गई, हमने तो ये सोचा ही नहीं कि ये जो वेव है ये जा कहाँ रहा है, एक्स में तो जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, is it traveling along positive x-axis or is it traveling along negative x-axis, where it is going। लेकिन x तो तुमने माइनस लिखा,
तो पॉजिटिव की नेगेटिव? द वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव? तो अगर माइनस एक्स आए तो द वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उल्टा होता है। और अगर हमारे पास वेव है विच इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, उस केस में यहाँ पे बीच में क्या लिखोगे? प्लस। तो देयरफॉर अ वेव ट्रेवलिंग along negative x-axis is given by y x of t equal to a sin omega t plus k x plus y। क्लियर है सर? अभी एग्जैक्टली ऐसा क्यों आया वो फिर अभी 12th में हम देखेंगे कि why you get such an expression। if it is traveling along positive x you get minus x, if it is traveling along negative x you get plus x। क्लियर? पक्का पक्का याद रहेगा इक्वेशन? श्योर? तो अभी बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? स्पीड ऑफ साउंड, है ना? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो भी टॉपिक दिया होगा, स्पीड ऑफ साउंड बोला होगा या फिर स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव बोला होगा या फिर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला होगा, तो ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, हमारे पास दो टाइप के वेव है और दोनों ही प्रोग्रेसिव वेव है। कौन से दोनों? एक है ट्रांसवर्स, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। तो पहले हम लोग देख देते हैं व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, बाद में देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड अगेन अगेन आपको यहाँ पे डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको सिर्फ इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इस फॉर्मूला पे जेई नीट में क्वेश्चंस आते हैं, और इस फॉर्मूला पे जेई नीट के क्वेश्चंस दो तीन टॉपिक को कंबाइन करके आते हैं। जैसे यहाँ का फॉर्मूला आप अगले साल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अप्लाई करोगे, वहां पे भी लगने वाला है ये सेम। तो पहले हम लोग ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे। ट्रांसवर्स वेव अभी आपको ओवरऑल पता है, क्या क्या पता है? ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम, मतलब वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। नंबर वन, दैट इज व्हाट यू नो, करेक्ट? ये तो आपको पता है, आपको वेव का इक्वेशन भी पता है। देन डू यू रिमेम्बर हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे ट्रांसवर्स वेव का? हमने एक प्रॉपर्टी बोला था, और दोनों में ही बोला था, द मीडियम थ्रू विच अ वेव प्रोपोगेट्स मस्ट बी इलास्टिक इन नेचर। और इलास्टिसिटी का मतलब क्या है ये भी मैंने बताया था, डिटेल में तो होगा ही जब वो चैप्टर चालू होगा तब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? रिस्टोरिंग फोर्स, याद है क्या? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एंड इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, याद है? तो इफ यू रिमेम्बर, शायद होगा तो प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, नॉर्मली होता है। पीपल स्पेसिफिकली on this side you wear some rubber bands. Do you have rubber bands, any one of you? Don't worry, टूटेगा नहीं, टूटेगा तो I'll buy you a new one. तो this material जिसको तुम फ्रेंडशिप बैंड, रबर बैंड जो भी बोलते हो, it is normally elastic in nature. क्यों? बिकॉज व्हेन यू अप्लाई फोर्स, मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो ये फोर्स क्या है? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है। एक्सटर्नल क्योंकि मैंने बाहर से अप्लाई किया, मटेरियल का खुद का नहीं था। डिफॉर्मिंग क्यों? क्योंकि उसने शेप चेंज किया। जब आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो मटेरियल के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है विच इज अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स, उसको बोलते हो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, राइट? तो जैसे ही एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स निकाला, the material goes back to its original shape and size. तो कौन सा material can go back to its original shape and size after removal of external deforming force? Elastic material। और जिस material में ऐसा नहीं होता है, वो material कुछ भी हो, उसको प्लास्टिक बोलते हो। For example, I had a piece of pencil here. I don't know. Oh, yes, it is still there. Very good. अभी ये पेंसिल है, मुझे पता है ये प्लास्टिक नहीं है, इसका नाम प्लास्टिक नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। मटेरियल का प्रॉपर्टी प्लास्टिक है वुडन ये। इफ आई अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, छोटा है तो आई एम नॉट एबल टू
अप्लाई फोर्स, बड़ा भी है क्या? ओके, हाँ बड़ा भी है, किसी का होगा तो सॉरी, he will not get this back again. So this is the material in which if I apply external force and if I remove the force, it cannot go back to its original shape and size anymore. ऐसे सारे मटेरियल को तुम बोलते हो प्लास्टिक। हाँ, इसका इसका जनरल नाम प्लास्टिक है, रेगुलर नाम कुछ और होगा, पेंसिल, साइंटिफिक नाम कुछ और होगा, आई डोंट नो, मे बी लेड, बिकॉज दे यूज लेड। So anyways, so the idea here is coming back to the important thing, हमको चाहिए था स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जिस मीडियम से पास होता है उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए इलास्टिसिटी का। वेल बाय द वे, हम यहाँ पे रबर बैंड को रबर बैंड रबर बोलते हैं। बाहर आप कहीं पे भी जाओगे ना आउट ऑफ इंडिया, आपको रबर नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। यू हैव टू गो एंड आस्क फॉर इलास्टिक। मैंने वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे रबर बैंड चाहिए था, मैं पूछ पूछ के थक गया कि रबर बैंड, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रबर बैंड हियर। फिर एक जगह पे देखा उसका नाम था इलास्टिक, सो दे कॉल दोस थिंग्स एज इलास्टिक, नॉट रबर बैंड ऑफ कोर्स। तो एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट हियर, जिस मीडियम में से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ से हम लोग ट्रांसवर्स वेव को प्रोपोगेट करने वाले हैं। अभी यहाँ से आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओरिएंटेशन देता हूँ। लेट अस से हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था, सीलिंग, उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांध दिया, स्ट्रिंग, रस्सी, बराबर बिल्कुल बंद। देन यू हैव अ लोड हियर, तो क्यों लगाया? बहुत सिंपल बात है, अगर मैं लोड नहीं लगाता हूँ तो स्ट्रिंग जो होगा वो टॉट नहीं होगा। टॉट नहीं होना मतलब लूज होना, तो स्ट्रिंग विल बी लूज इन दैट केस। जब तक स्ट्रिंग लूज है, जब तक स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है, तब तक यू कैन नॉट प्रोपोगेट ट्रांसवर्स वेव। तो रिमेंबर, अगर आपको एक स्ट्रिंग में, एक रस्सी में ट्रांसवर्स वेव को प्रोपोगेट करना है तो क्या चाहिए? टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स, वो क्या करेगा? स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेगा। तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू प्रोपोगेट ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रिंग, रस्सी, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग, क्या होना चाहिए? टेंशन। तो वेलोसिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन टेंशन, मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेंशन, होना ही चाहिए। और ये टेंशन क्यों चाहिए भी सोचो, क्यों चाहिए? टेंशन विल प्रोवाइड इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जब तक तुम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाते, मैंने रबर बैंड का एग्जांपल दिखाया था, मैंने जो फोर्स लगाया था वो क्या था? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। उसने क्या प्रोड्यूस किया? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। कितना प्रोड्यूस किया? जितना एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स था एग्जैक्टली उतना, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो हमको इलास्टिक नेचर लाने के लिए, स्ट्रिंग में इलास्टिक नेचर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। वो किसने लाया? इस वेट ने। वेट क्या होता है? mg। mg क्या होता है? फोर्स, और फोर्स में क्या नाम है? टेंशन। तो टेंशन मतलब क्या है यहाँ पे? mg। ये हमने क्यों लगाया? फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स व्हिच इज to be elastic divided by, और जिस मटेरियल में से, जिस मीडियम में से ट्रांसफर से पास होता है उसके पास और कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए, जिसमें एक हम लोग बोलते हैं स्मॉल एन। व्हाट इज स्मॉल एन? दिस स्मॉल एन इज मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मेरे पास इस पूरी रस्सी का, पूरे मास, लेट अस से पूरे स्ट्रिंग का मास m है, m, तो कैपिटल M इज द मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ। इमेजिन मेरे पास 10 मीटर मास, टोटल मास 20 किलो है, तो 1 किलो में 1 मीटर में कितना? I have a string 10 meter long. Total weight is, total mass is 20 kg.
10 मीटर का वायर, मास है 20 किलोग्राम। 10 मीटर का वायर, मास है 20 किलोग्राम। तो 1 मीटर में कितना किलोग्राम? कितना? तुमको ही बोल रहा हूँ मैं, कितना? ब्लैक टी शर्ट। यस, टी शर्ट इज वेरी गुड बाय द वे। हाँ, तो बताओ, मेरे पास एक रस्सी थी 10 मीटर लंबी, 20 किलो उसका मास था। तो 1 मीटर में कितना मास हुआ? कितना हुआ? हाँ, 2 किलोग्राम। इसको आप बोलते हो मास पर यूनिट लेंथ। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ओनली ऑन टू फैक्टर्स, एक है टेंशन और एक है मास पर यूनिट लेंथ। दिस इज नॉट मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। क्लियर? अभी अंडर रूट क्यों आया? डायमेंशन चेक करो ना। स्पीड के डायमेंशंस क्या होते हैं, याद है क्या? L1 T-1, याद है? यस। टेंशन मतलब कौन? फोर्स। तो टेंशन के डायमेंशन मतलब किसके डायमेंशन? फोर्स। और फोर्स के डायमेंशन क्या थे? M1L1T-2 डिवाइड बाय किया तुमने m। व्हाट इज m? मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज मास के डायमेंशंस? m1 अपॉन l, तो वो ऊपर आके L-1। अब t बाय स्मॉल m को डिवाइड करके देखो, डायमेंशनली डिवाइड करके देखो, क्या आया? M1L1T-2 अपॉन M1L-1। क्या क्या कैंसिल हो गया? ओके, तो क्या बचा? L2T-2। लेकिन ये तो स्पीड के डायमेंशन का क्या है? स्क्वायर है। तो क्या लोगे? स्क्वायर रूट लोगे। तो वेलोसिटी किसका? ट्रांसवर्स वेव का। किस पे? ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड ऑन टेंशन। टेंशन इज फोर्स। किसने प्रोड्यूस किया? जो नीचे तुमने वेट लगाया था उसने प्रोड्यूस किया, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। व्हाट इज स्मॉल एम? मास पर यूनिट लेंथ। गुड। तो इतना ही है बस, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। So when a transverse wave propagates along a string, its speed depends on two parameters. One is tension, क्योंकि टेंशन जरूरी है। टेंशन will provide necessary restoring force, internal restoring force। क्योंकि मटेरियल क्या था? इलास्टिक इन नेचर था, तो क्या होना चाहिए? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। कहाँ से प्रोड्यूस किया? लोड लगा दिया नीचे, उसने क्या प्रोड्यूस किया? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग। उसने क्या प्रोड्यूस किया? इंटरनल रिस्टोरिंग। तो टेंशन इन शॉर्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अब बात कर ही रहे हो तो अगली बार से याद रखना कि जहां पे भी रस्सी स्ट्रेच्ड हो वहां पे हमेशा क्या होता है? टेंशन। क्या होता है? टेंशन। और टेंशन क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स है। मतलब M1L1T-2। क्योंकि 12th में और एक टेंशन सुनोगे, सरफेस टेंशन। दैट इज नॉट फोर्स, दैट इज फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड के सरफेस पे। ये लिक्विड था क्या? नहीं। तो रस्सी और टेंशन जब सुना तो टेंशन कौन है? फोर्स है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली। तो अगर आप देखोगे आगे होगा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और इसके ही नीचे देखोगे तो और एक आपको सब हेडिंग दिखेगा। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। इंटरेस्टिंग। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड। गुड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, दिस इज, अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुन लो क्योंकि इसका कनेक्शन 12th के साथ है और JEE नीट के साथ भी है। साउंड वेव मतलब क्या? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन मतलब पार्टिकल्स का एक दूसरे के पास में आना, मतलब प्रेशर और डेंसिटी बढ़ना। करेक्ट। अब 12th में थर्मोडायनामिक्स में आप तीन चार वर्ड बार बार सुनोगे। एक होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? व्हाट इज आइसोथर्मल? Same temperature. A process that occurs at same temperature is known as isothermal process. A process in which heat
can leave or enter the system is isothermal process. अब बोलोगे ऐसा कैसा हो गया, चलो ध्यान दो, कंफ्यूजन कंफ्यूजन बहुत रहता है इधर। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन फिट कर देंगे, और एक पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, और अगर मैंने इसके अंदर एक गैस भर दिया, और मैंने अगर इस पिस्टन को नीचे मूव किया, नीचे मूव करना मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस। वर्क डन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन M1L2T-2 मतलब कौन, एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो पिस्टन को तुमने नीचे मूव किया था, मतलब वर्क डन किया था, वो तो एनर्जी है, वो तो तुम डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, कहाँ गया, हीट में कन्वर्ट हुआ, वो हीट किसको मिल गया, गैस को। लेकिन हमने तो बोला कि आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जो वर्क हुआ गैस पे हुआ, हीट गया किसको गया, गैस को गया, तो टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। तो फिर इसके लिए जो ये साइड के वॉल्स होते हैं ना, वो कंडक्टिंग होते हैं, मतलब जो भी हीट जनरेट हुआ है वो कहाँ गया, बाहर चला गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, दैट द वॉल्स शुड बी कंडक्टिंग। कंडीशन नंबर 2, दैट द प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। क्यों वेरी स्लो, क्योंकि जो भी वर्क हीट में कन्वर्ट हुआ उस हीट को बाहर जाने के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए। इसको साइंस की भाषा में बोलते हो क्वासी स्टैटिक। क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक। क्वासी मतलब स्लो, क्वासी स्टैटिक, क्लियर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए क्या कंडीशन है, द प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो, so that the heat generated should be able to go out। बराबर। अब इसका वेव के साथ और साउंड के साथ क्या कनेक्शन आया वो भी समझ लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। साउंड जनरेट करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उसमें से एक है ट्यूनिंग फोर्क। देखा है ट्यूनिंग फोर्क, देखा है, देखा है, चम्मच जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको तुम पैट करते हो मतलब पटकते हो, और उसके बाद उसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं, प्रॉन्ग्स, इट हैज प्रॉन्ग्स, ये प्रॉन्ग बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, बाहर पुश करेगा, तो क्या होगा, कंप्रेशन हो, क्योंकि ये वाइब्रेट हो रहा है ना प्रॉन्ग। तो पहले बाहर गया था, अब कहाँ आ गया, अंदर आ गया। अंदर आया तो क्या हुआ, क्या जनरेट हुआ, रेयरफैक्शन। तो ये जो कंप्रेशन जनरेट हुआ था ये कहाँ गया, ये आगे चला गया। तो कंप्रेशन तो ट्रेवल कर गया आगे, इधर कौन जनरेट हो गया फिर, रेयरफैक्शन। बराबर। जब कंप्रेशन जनरेट हुआ था तो प्रेशर क्या हुआ था, बढ़ गया था, डेंसिटी क्या था, बढ़ गया था, तो हीट जनरेट हुआ होगा। ये देखो ये पिस्टन जैसा मोशन है, पिस्टन जैसा मोशन है, पिस्टन नीचे आता है तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो कंप्रेशन होता है तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है, सही है, बराबर। तो हीट जनरेट हुआ, तो हीट को डिसिपेट होने के लिए मतलब फैलने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो न्यूटन ने बोला, न्यूटन ने ऐसा बोला, ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का, ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल है मतलब ये क्या है, वेरी स्लो, और वेरी स्लो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ई बाय रो, वेयर ई इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। वो तुम चैप्टर नंबर 6 में सीखोगे। और ये जो इलास्टिसिटी है आइसोथर्मल प्रोसेस का, कौन से प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इलास्टिसिटी इज गिवन बाय प्रेशर, तो फिर V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P अपॉन रो। हमारे पास जो साउंड है वो कौन से मीडियम से पास हो रहा है, एयर। एयर का प्रेशर मतलब कौन सा प्रेशर,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये अजम्पशन होता है कि आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी सीखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउ डू यू फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बैरोमीटर। What is the height of mercury in barometer for atmospheric pressure? 76 क्या किलोमीटर? फिर लाइट ईयर्स। हाँ क्या क्या 76 क्या? What 76? 76 mm, 76 सेंटीमीटर क्या? 76 सेंटीमीटर किसका? 70 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम का। मर्क्यूरी कॉलम का। तो बैरोमीटर में क्या यूज किया तुमने? मर्क्यूरी। तो डेंसिटी किसका लोगे? मर्क्यूरी का। ये बाहर डेंसिटी किसका है? एयर का। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर? 1.29 के आसपास होता है, मतलब 1.23 ऐसा कुछ होता है, दिया हुआ है वो सब। 1.293 ऐसा दिया हुआ है आपको। व्हाट इज हाइट एज यू सेड? 76 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? चलो पानी का डेंसिटी बता दो। जो पानी हम पीते हैं, जो पानी लाइफ का एसेंशियल एलिमेंट है, जिस पानी के बिना ना तुम ना मैं ना कोई और रह सकता है, वही पानी की मैं बात कर रहा हूँ। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 13,600 इंटू जी की वैल्यू 9.8 और डेंसिटी ऑफ एयर इज। तो जब तुम इसको पूरा सॉल्व करते हो तो तुमको मिलता है 279.9 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि जब साउंड मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव एयर में से पास होगा तो वो प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब क्वासी स्टैटिक है, मतलब स्लो प्रोसेस है। और अगर स्लो प्रोसेस है तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है जनरल फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। लेकिन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इलास्टिसिटी क्या है? इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कैसे फाइंड करते हो? एच रो जी। व्हाट इज एच? हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर, दैट इज 76 सेंटीमीटर। व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी इज 9.8। तो ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिल गई? क्या मिल गई? 279.9 मीटर पर सेकेंड। कोई भी थ्योरेटिकल वैल्यू तब तक करेक्ट नहीं मान सकते हो जब तक एक्सपेरिमेंट से भी सेम मिले। तो जब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मेजर किया गया, नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने मेजर किया, अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर किया, 0 डिग्री पे, रूम टेम्परेचर पे, तो वैल्यू मिला 332 मीटर पर सेकेंड। कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। इधर कितना है? 279.9, मतलब 280 मान लो। कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? मोर और लेस 52। 16% का डिफरेंस आ रहा है। कितना? 16%। अगर 1/2% होता तो हम मान लेते इंस्ट्रूमेंटल एरर है। एक्सपेरिमेंटली जो हमने मेजर किया, जो डिवाइस यूज किया होगा उसमें एरर होगा, हो सकता है। लेकिन 16% का एरर इज नॉट एक्सेप्टेबल। 16% एरर है। theoretical value obtained from Newton's formula and the experimental value। तो चलेगा नहीं। तो ये भाई साहब, कौन भाई साहब? न्यूटन। वो समझा ही नहीं पाए कि ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। समझाने के लिए लैपलास नाम का साइंटिस्ट आया। तो अगला हम देखेंगे लैपलास करेक्शन टू द फॉर्मूला, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।